Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are all fine. Students, today is a summary of Math Zoom online class. This is your maths book. Okay ji, today we are going to start the multiplication which we have already started in the classes. So just recall the multiplication, that what is multiplication and what are the rules and why we use the multiplication. Clear? What is multiplication? Multiplication is an arithmetic operation for finding the product of two numbers. Arithmetic operation, remember मैंने आपको बताया था कि हमारे पास arithmetic operations होते हैं. ये this is the third one, arithmetic operation. Clear? फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कोई भी टू नंबर्स हों, चाहे वो सेम है चाहे वो डिफरेंट नंबर्स हैं. व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, सो इट गिव्स द आंसर विच इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स. क्लियर? What are the rules of? There are some rules of multiplication. The first one rule is any number multiplied by 0 is equals to 0. Means कि आप किसी भी number को 0 से multiply करेंगे, it always gives you 0. And any number multiplied by 1 stay the same. It means कि that आप किसी भी digit को, किसी भी number को 1 से multiply करेंगे, so it always gives you the same number. जिस भी number से आप multiply कर रहे हैं वही number आपको answer में मिल रहा है. ठीक है? What are the uses of multiplication? The easiest way to find the total number of items in groups is to use multiplication. जब हम total number of items को हम जब combine कर लेते हैं, ठीक है, combine करना होता है, so वो हमारे पास क्या चीज़ आती है? Multiplication होती है. Multiplication allows you to do repeated addition quickly. Repeated addition means कि कोई भी आप like आपके पास 2 है, so when we add 2 5 times 1 2 3 4 एंड 5. अब देखें ये एडिशन है सारी, ठीक है. अब इसको मैं ऐड करती जाऊंगी, इट गिव्स अस 10. और अगर मैं इसको 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँगी, 2 5s are, सो इट ऑलवेज गिव्स अस 10. सही हो गया. सो रिपीटेड एडिशन हमारे पास होती है. द नंबर्स यू मल्टीप्लाई आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. जो नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं, दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स. ये लाइक दिस वन. सो 4 5s are 45 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दीज टू आर नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. एंड द प्रोडक्ट मीन्स कि द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यही हमारे पास आंसर होता है जो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. दिस इज एक्सरसाइज 1.3. क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 30. हम यहाँ पर हमें जस्ट नंबर्स गिवन है, सेकंड नंबर नहीं है, ठीक है. दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड नंबर इज़ नॉट गिवन बट द सेकंड नंबर इज़ दिस 30. कहते हैं हर नंबर को क्वेश्चन के किससे मल्टीप्लाई करें? विथ 30. सो 28 मल्टीप्लाई बाय 30. So how to multiply 28 by 30? So 28 and 30. 0 8s are 0. अभी बताया, ठीक है. Any number multiply by 0, it gives us 0. 0 2s are 0. Clear? Okay, now when we are going to start the next step, so first of all, after the first digit, below the first digit, we put the cross. 3 8s are 24. Clear? 3 2s are 6, 7 8. So there is no digit more, so we add them. 0 as it is, 4 plus 0 is 4 and 8 इसी तरह ही आ जाएगा. बाकी भी ये रिमेनिंग पार्ट्स इसी तरह से हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट वर्टिकली एंड देन सॉल्व. अब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है एंड वी हैव टू राइट देम फर्स्ट इन वर्टिकली एंड देन सॉल्व. 4924 मल्टीप्लाई विथ 63. So let's start the numbers. 3 4s are 12, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 9s are 27, 7 is here and 2 will be carry on the next one. 3 4s are 24 plus 2, 3 4s are 12 plus 2 14. Now the next one is, after that below the 2 we put the cross because we are going to start the next step. So 6 4s are 24, 6 2s are 12, 13 14, 6 9s are 54 plus 1 55, 6 4s are 24 plus 5 29. ठीक हो गया. सो ऐड देम. 2 एज इट इज़. अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस 2 को हम लास्ट वाले को प्लस नहीं करते कि नीचे यहाँ पे मैडम क्रॉस लगा हुआ है, सो यू शुड ऐड दिस नंबर. 2 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है. 7 plus 4 11, 1 here and 1 will be carry on the next one. 7 1 8, 8 plus 4 12, 2 here and 1 will be carry on the next one. 5 plus 4 9, 9 1 10 and 9 1 10 11. 1 is here and 1 will be carry on the next one. 2 plus 1
3. So this is the answer. Clear? So ये हमारे पास 4 parts ये हो गए हैं. Now the next one topic is division. Okay, now let's check the definition of division. That what is division? Division is a sharing operation where objects are shared or divided into number of groups or equal numbers. जहाँ पर ये divide हो जाते हैं, share कर दिए जाते हैं. So equal number of groups में या number of groups में हमें जब equal divide हो जाते हैं, that is the division. अब parts इसके क्या होते हैं? The number which is divided is called the dividend. जो number divide हो रहा होता है, that is called the dividend, and the number which divides is divisor. The number which gives result is the quotient, and the number which is left over, जो number last में हमारे पास रह जाए, that is the remainder. Clear? Now what are the let's take the example. I have an example that's 42 divided by 6. Now this one 6 is the divisor because it divides the number. Clear? The number which is written inside the division house, that is the dividend, which is 42. This is the dividend because it divides. ठीक है, ये divide हो रहा है. ठीक है, 6 7s are 42. So this 7 gives us the result. So this is the quotient and nothing is left over. So the remainder will be 0. ठीक, यूज़ ऑफ डिवीजन इज़ द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैथमेटिक्स. डिवीजन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है. कैसे ऑपोजिट होता है कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वी हैव इन मल्टीप्लिकेशन द नंबर्स लार्जर, नंबर जो है वो ज़्यादा होते जाते हैं, ग्रुप्स में बनते जाते हैं. एंड इन डिवीजन जो नंबर्स होते हैं वो लेस होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं. डिवीजन अलाउज यू टू डिवाइड और शेयर नंबर्स टू फाइंड एन आंसर. डिवीजन क्या करता है? अलाउज करता है हमें डिवाइड कर दे और शेयर कर दे नंबर को. ठीक हो गया. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. हमें क्वेश्चन कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 697 डिवाइडेड बाय 17. ओके जी, द फर्स्ट नंबर ऑलवेज बी द डिविडेंड, ये डिवाइड होता है. एंड द सेकंड वन इज डिवाइजर. अब हम क्या करते हैं? इस डिवाइजर के लिए यहाँ पर टेबल बनाते हैं. ठीक है, क्यों टेबल हमें यहाँ पर बनाने की? क्योंकि डिवाइड कर रहा है ना. सही. सो फर्स्ट डिजिट को अगर मैं चेक करूँ, दिस इज 6 इज लेस देन 17 मीन्स के 17 के टेबल में तो वो कहीं पर भी नहीं आता. हम डिवाइजर की हेल्प लेते हैं और नंबर्स को डिवाइड करते हैं. सही. अब यहाँ पर क्या होगा कि हम सेकंड डिजिट को भी साथ अटैच करेंगे. नाउ इट बिकम 69. नाउ मेक द टेबल ऑफ 17. कैसे टेबल बनाएंगे? 17 मल्टीप्लाई विथ 1, 17 मल्टीप्लाई विथ 2, 17 मल्टीप्लाई विथ 3, 17 मल्टीप्लाई विथ 4. यहाँ से हम टेबल बनाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि 69 के इक्वल और नियरेस्ट टू 69, लेस देन 69 कोई नंबर हमें मिल जाए. सो वी गॉट 68 which is nearest and less than 69. Clear? So 17 4s are 68. So 9 minus 8 1 and bring down this 7, so it becomes 17. So 17 1s are 17. So 7 minus 7 0, 1 minus 1 0. So the quotient is 41 and the remainder is 0. क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन इसके बाकी पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है. यहाँ पर वो कहते हैं क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करो. ठीक है, वही हमने डिवाइजर का टेबल बनाना है एज इट इज़, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, और उसी तरह से हम इसके डिवाइजर और क्वेश्चन और रिमाइंडर को फाइंड आउट करेंगे. लेट्स डू द वर्ड प्रॉब्लम्स. Question number 6. A train travels a distance of 162 km in 1 hour. How far will it travel in 13 hours? कहते हैं कि ट्रेन एक ट्रेवल कर रही है 1 आवर में. अगर वो 162 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो बताएं कि हाउ फार विल इट ट्रेवल, कि कितने दूर तक ट्रेवल कर सकेगी इन 13 आवर्स. हमें 1 आवर का बताया है विच इज़ 162 किलोमीटर एंड वी हैव टू फाइंड फॉर द 13 आवर्स. सो कीप इन योर माइंड दैट whenever we knows about the one thing. ठीक है, वन चीज़ के बारे में हमें पता है, 1 hour, 1 day, 1 price, 1 quantity, किसी भी वन के बारे में पता है. we have to find for the more, so we always do the multiplication. Clear? So we do the multiplication and answer is this one. Now the second one is the same as it is the first word problem. Now do the third one. In a camp, 8,000 children are divided into groups, each having 25 children. Find the total number of groups. In a camp, कहते हैं एक कैंप में how many children are there? 8,000. सही. एंड डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स. देखिए इस डिवाइडेड के वर्ड से हमें शो हो गया कि ये ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं और हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं? 25 हैं. तो कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स. अब यहाँ पे उन्होंने ग्रुप की बात कर ली है. सो ग्रुपिंग मीन्स वी डू द डिवीजन. सो पहले हम स्टेटमेंट्स क्या मेंशन करेंगे? टोटल चिल्ड्रन आर 8,000, चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप इज 25 एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स. अब जब ग्रुपिंग की बात आ गई है, डिवीजन की बात होगी, हमने चिल्ड्रन को ग्रुप्स में डिवाइड करना है. सो वी डू द डिवीजन. उसी तरह डिवीजन का प्रोसेस करेंगे और लास्ट स्टेटमेंट विच इज
टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज़ 320. ठीक हो गया. ओके जी, दिस लास्ट 2 क्वेश्चंस इज द सेम एज इट इज़. सो जब तक अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.